Hello everyone, myself Dr. Shivam Misra and I will teach you botany. But before teaching anything to you, let me discuss about this wonderful online learning platform provided by Narana Academy, Lucknow. Dear all, this platform is India's best online learning platform, not only for NEET examination, but also for JEE. All the teachers at this platform, they are the best in their respective field and they have the proven success track of many long years. Whether it is physics, whether it is chemistry, biology, or mathematics, you will get an unmatched teaching methodology at this wonderful platform. As you know that biology is one of the most important ingredient of NEET examination. It constitutes 50% syllabus of the total NEET syllabus and 50% marks. That means 360 marks out of 720 in NEET examination has been constituted by biology itself. I, along with my zoology counterpart, Dr. Bakul Dev, will take care of this entire biology syllabus for you people. I would like to mention here a very interesting fact related to the NEET examination. Not only 50% of the total marks confined to the biology subject, but also this is the most prioritized subject in the NEET examination. Prioritize means if two or more than two students are getting equal number of total marks, in that condition, student having higher marks in biology would have the best rank. If we can take an illustration to explain this in a little bit elaborated way. So the better example is the counseling of NEET 2019. On the last day of counseling, there were just 47 seats for the MBBS course and around 80 plus students have 585 marks. I beg your pardon. Let me clarify the things once again. 585 marks holders were 47 students and the total number of seats were just 23. So can you imagine, despite scoring 585 marks, not every student have got MBBS seat. Out of 47, just 23 have got the seat and rest 24 has back to pavilion. They are compelled to back to their home without getting anything. So rank of the student is preferably determined on the basis of biology marks if two or more than two students are getting equal marks. Having such facts in our mind, I don't wish to say that you should ignore other subjects, because in any competitive examinations where cutoff is very high, soaring high, 585 out of 720 marks, in that condition, if you are ignoring any subject, then forget to get selection, because it's a cutthroat competition. Around 17 lakh students are
going to appear in NEET 2020, and just for 41,388 seats. That means only 2.4% students will get selection, and this 97.5% will back to pavilion, will get failure. So in such a cutthroat competition, your sincerity and punctuality, your guidance related to your guidance in different subjects by the expert and competent faculty members will create all the difference. I hope that you will enjoy learning different subjects for NEET as well as JEE examination at this very prestigious platform of Narayana Academy. So let us begin with the 11th, the very important content of 11th syllabus in botany, and that is plant anatomy. And today in this plant anatomy, we will discuss about the simple permanent tissues. As we know that tissues are the group of cells having common origin and function. In plants, the plant parts are very limited. That means root, stem and leaf. And therefore, plants usually have very simple body organization. Accordingly, they basically contains two major types of tissues. And to classify these two major types of tissues, the criteria that has been taken into consideration is division capacity of cells of the tissues. तो सेल्स के डिवीजन करने की क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर दो तरीके के टिश्यूज प्लांट बॉडी में होते हैं. पहले टिश्यूज हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरे हैं परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनमें थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और परमानेंट टिश्यूज ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनमें कि डिवीजन नहीं होता. उनकी ओरिजिन हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही होती है, लेकिन उनमें खुद कोई डिवीजन नहीं होता और उनकी सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. सो परमानेंट टिश्यूज अगेन दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. तो आज हम इन्हीं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद सिंपल परमानेंट टिश्यूज. So let us begin with the simple permanent tissues. So here, as you can see, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम बात करेंगे. तो व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. ये सबसे बड़ी बात है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस यही होता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप की सेल पार्टिसिपेट करती हैं टिश्यू बनाने में. फर्दर देयर आर 3 different types of simple tissue systems in plants. First is parenchyma, second is collenchyma, and third is sclerenchyma. There are 3 permanent tissues in the plant body. Let's first discuss about the parenchyma. And the important characteristics of parenchyma are as follows. Parenchyma
कि इंपॉर्टेंट लक्षण, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये नीचे दिए गए हैं, मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। फिलहाल आप ये देखें कि ये आपके सामने ये जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये टिश्यूज सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल्स विच कंटेन्स प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है सेल्स के अंदर। सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके सेल्स में न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है। दे आर थिन वॉल्ड सेल्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड इट हैज ओनली प्राइमरी सेल वॉल। यू नो, जब आप आगे स्टडी करेंगे साइटोलॉजी तो आप देखेंगे कि नॉर्मली प्लांट सेल्स में मल्टी लेयर सेल वॉल होती है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, मिडिल लेमिला। तो हालांकि मिडिल लेमिला तो यहाँ पे होगी, बट प्राइमरी सेल वॉल ही होगी, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर इज नो लिग्निन डिपोजिशन, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन आपको नहीं मिलेगा। लिग्निन एक तरीके का, जिस तरीके से यहाँ पे सेलुलोज है वैसे ही एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड कंपाउंड है लिग्निन। और नॉर्मली प्लांट सेल्स में जैसे जाइलम की सेल्स होगी, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई सेल्स होगी, उनमें लिग्निन का डिपोजिशन आपको मिलेगा, बट पैरेन्काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, उसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि विच आर द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव लिग्निन डिपोजिशन। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस में आप ये देखेंगे कि पैरेन्काइमा अगर दिया गया है तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा cells are relatively undifferentiated. Undifferentiated means almost every cell in the tissue they are adapted to perform a specific function. There is no differentiation to carry out different types of functions in the plant body. एक्चुअली इनका एक ही फंक्शन है, या तो ये फूड स्टोरेज करेंगे या फूड की सिंथेसिस करेंगे, तो इसलिए इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। द लास्ट स्पेशलाइज्ड along simple permanent tissues means they are least specialized along simple permanent tissues and they occupies in the ground tissues। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड टिश्यू का मतलब होगा कि रूट ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, तो इनका जो मेजर पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा का ही बना होता है, जिसको कहते हैं ग्राउंड पोर्शन। ज्यादा मेजर पार्ट पैरेन्काइमा ही बनाता है। ऑल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जब हम आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ाएंगे वेस्कुलर टिश्यूज, तो आप देखेंगे कि उनके साथ भी ये एसोसिएटेड होते हैं। And how they originated? The origin of parenchyma is from ground meristem and cortex. जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हम पढ़ा चुके हैं कि ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है, तो ग्राउंड मेरिस्टेम से ही इनकी ओरिजिन होती है। फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम इन वैस्कुलर बंडल। आगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। तो इस तरीके से पैरेन्काइमा की ओरिजिन ग्राउंड मेरिस्टेम और वैस्कुलर कैम्बियम दोनों से होती है। याद रखिएगा इस बात को, पैरेन्काइमा की ओरिजिन ग्राउंड मेरिस्टेम और वैस्कुलर कैम्बियम दोनों से होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिंपल टिश्यू, और वो है कोलेनकाइमा। सेकेंड सिंपल टिश्यू इज कोलेनकाइमा। ये क्या है जरा ध्यान से देखिए। कोलेनकाइमा occurs in the peripheral region of the plant. Peripheral region का मतलब हुआ surface of the petiole, surface of the leaf, young stem, herbaceous plants अगर है कोई, herbs, shrubs and trees,
इनके बारे में आप जानते होंगे। हर्ब्स यूजुअली सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, तो ये ज्यादातर पेरिफेरल प्लांट के पेरिफेरल जोन में पाए जाते हैं। और क्यों होते हैं पेरिफेरल जोन में? क्योंकि ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली कोलेनकाइमा की खास बात यह है कि डाइकॉट के अलावा कभी भी मोनोकॉट में नहीं मिलेंगे। तो आप एक इस पॉइंट को जरूर याद रखें, क्योंकि अगर पूरी प्लांट टिश्यू से एक क्वेश्चन बनाने को दिया जाए तो ये इतना फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का कि इमीडिएटली वो एक ही क्वेश्चन डाल देगा कि विच आर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू never occurs in monocots, and that is none other than Kolenkaima. So as we told that they are mostly found in dicots, and dicots में भी कहां they are the part of hypodermis. Ridges are occupied by the Kolenkaima. Ridges कहते हैं कहीं पर भी जैसे नॉच होती है ना, नॉच एंड रिज, गड्ढा और चढ़ाव, तो ये रिजेस में भी मिलते हैं। उसी तरीके से डाइकॉट लीफ में दे आर फाउंड अबव द पेटियोल, मिडरिब एंड लीफ वेन्स। पेटियोल, मिडरिब एंड लीफ वेन्स हम लोग सॉरी पढ़ चुके हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में। रेयरली सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। नॉर्मली इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन एक बात यहां पे याद रखिएगा कि अगर पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट मिला तो उस कंडीशन में इन दोनों टिश्यूज को कलेक्टिवली हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो एक्चुअली क्लोरेनकाइमा इज नॉट अ सेपरेट टिश्यू, इट इज इन फैक्ट अ कलेक्टिव नेम गिवन टू Kolenkaima and parenchyma when both of them have developed chloroplast. Sometimes contain tannin. Tannin एक alkaloid substance है, कभी कभार कहीं कहीं पर इनमें tannins भी मिलते हैं। Cells compactly packed without intercellular spaces. इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं स्पेस बिटवीन द टू सेल्स। सो नॉर्मली इनमें सेल्स के बीच में, ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और आपके सामने ये भी कोलेनकाइमा का ही डायग्राम है, दिस वन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इनमें आगे मैं बताऊंगा कि थिकेंड कॉर्नर्स होते हैं। इनमें सेलुलोज पैक्टिन की एडिशनल थिकनिंग होती है। तो अक्सर ये पूछते हैं कि आप बताएं कौन से ऐसे टिश्यूज हैं प्लांट सेल में, लिविंग टिश्यू, जिनके की कॉर्नर थिकेंड होते हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि कोलेनकाइमा ही होते हैं। तो जितने यूनिक क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सब आपको बता दिया कि मोस्टली ये डाइकॉट्स में होते हैं, सिर्फ डाइकॉट्स में होते हैं, मोस्टली ही नहीं। इसके अलावा इनके कॉर्नर थिकेंड होते हैं, रेयरली पजेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, आपको बता दिया। एंड कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन रूट्स में भी नहीं होते along with the monocot, and completely absent in monocot। ये लाइन यहां पर आ गई। एंड एक चीज जो यहां पे मिसिंग है मैं आपको बता दूं, दे हैव द स्पेशल थिकनिंग अराउंड द कॉर्नर, एंड these thickened areas are composed of cellulose and pectin। तो पेक्टिन और सेलुलोज की स्पेशल थिकनिंग इनके चारों तरफ होती है, और इसीलिए इनको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। प्लांट बॉडी में क्या बोलते हैं इनको? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो आप ये कह सकते हैं कि कोलेनकाइमास आर living mechanical tissue of the plants. So with this, today's lecture comes to an end. I wish to conclude the lecture for today, and in the next topic we will discuss the third type of simple tissue,
simple permanent tissue, and that is sclerenchyma. I hope that you would enjoy this teaching, and definitely not only you, but you will recommend your friends to learn physics, chemistry, biology, and math at this platform. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, bachcho.